سارا جلال یسوع نام کو ملے اور خداوند کی تعریف ہو اس بات کے لیے کہ ہم نے بہت خوبصورت دیکھی خداوند جب خداوند زندہ خدا کو ہم مبارک کہتے ہیں، خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو خدا کا تخت ہمارے درمیان میں لا دیتا ہے اور یہاں پر ہمارا مالک ہمارا خداوند موجود ہے۔ بہت جلد یہ سین تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ تبدیل ایسے ہوگا کہ اب تو ہم لکھا ہے کہ آئینہ میں دھندلا سا نظر آتا ہے، ہم پھر لکھا ہے کہ اس کو روبرو دیکھیں گے، اپنے سامنے دیکھیں گے۔ آمین۔ جب خدا کی بادشاہی آ جائے گی تو پھر ابھی ہم ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ موجود ہے، موجود بھی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے پاس جلالی بدن نہیں، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ہم برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یاد ہے کہ موسیٰ نے یہ خداوند سے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور خداوند نے کہا تھا کہ کوئی بھی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اسی طرح جماعت کی شکل میں بیٹھے ہوں گے اور خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع کا تخت لگا ہوگا اور ہم سب خداوند یسوع مسیح کو دیکھ رہیں گے اور اس کے ہاتھوں پاؤں کو چوم سکیں گے، ہم خداوند یسوع مسیح سے ہم اپنے دل کی باتیں کر سکیں گے۔ کتنا خوبصورت یہ لمحہ ہوگا، اتنی خوبصورت بات ہوگی کہ اس مسیحا کو اپنے سامنے دیکھ سکیں گے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کا کلام کو ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے اپنی امیجنیشن میں خداوند کی بہت ساری شبیہیں بنائی ہوں گی، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک امیج ہے ذہن میں، لیکن اس وقت جو ہے ہم سب کو ایک خداوند ہمارے سامنے بیٹھا نظر آئے گا اور ہم اس تخت، اور یسوع مسیح نے یہاں تک کہا کہ میں تمہیں اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس تخت پر بیٹھ گیا۔ سو خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، خداوند ہمیں بہت عزت بھی دیتا ہے، رسپیکٹ بھی دیتا ہے، خداوند اپنے ساتھ ہمیں بٹھانا چاہتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے تخت پر بیٹھیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہمارا خدا ہم سے بھتے وصول نہیں کرتا، ہمارا خدا جو ہے وہ ہم سے ایسے ہی ڈیمانڈز نہیں کرتا کہ اتنی دفعہ جا کے پہاڑوں سے چڑھ جاؤ، کونیوں کے بل جاؤ، گھٹنوں کے بل جاؤ۔ یہ جو مریم آباد میں پاکستان میں ہوتا ہے، مریم آباد، وہ تو سارا ہندوازم کا وہ کہنے کے لعنت ہے جو کی جاتی ہے کہ گھٹنوں پہ کونیوں پہ جاتے ہیں اور وہ پہاڑیوں پہ جا کر بت کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ یہ دس از ناٹ دا گاڈ وی فالو، دس از ناٹ دا بائبل وی فالو، دس از ناٹ دا فیتھ وی ہیو، آور فیتھ از ان دا لیونگ گاڈ۔ ہاللیلویہ۔ زندہ خدا کے اندر ہمارا ایمان ہے جو آسمان پر ہے اور زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے، ہمیں برکت ملتی ہے۔ سو ہمیں ان چیزوں سے خوشی کرنی ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جو ڈیمانڈ نہیں کرتا، جو ہمیں دیتا ہے، جو ہم سے لیتا نہیں ہے، ہماری جانیں ہم سے نہیں لیتا۔ وہ لوگ جو اپنا جسم کے ساتھ بم باندھ کے جاتے ہیں کیونکہ ان کا خدا ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ جا کر دو چار کو قتل کر کے خود بھی مر جائیں، لیکن خداوند ہمارا خدا کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ایسی محبت کی کہ اپنا بیٹا بھیج دیا۔ ہاللیلویہ۔ بجائے اس کے کہ ہم جا کر اپنے بچوں کو قربان کریں، ہم جا کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ لعنت کے نیچے لے آئیں، قتل و غارت میں، بلکہ وہ اپنے بچے کو ہمارے لیے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ سو کیسا ڈیفرنٹ ہے مسیحیت، ایمان جو ہے بائبل کا کتنا ڈیفرنٹ ہے دنیا کے تمام مذہب سے، دنیا کے تمام فیتھ سے۔ دنیا کے باقی خدا جو ہے وہ لیتے ہیں، ہمارا خدا دیتا ہے۔ دنیا کے باقی خدا جو ہے وہ ویٹ نہیں کرتے، ہمارا خدا جو ہے وہ ایسے باپ کی طرح جو اپنے مصرف بیٹے کا انتظار کر رہا تھا، دروازے پر کھڑا ہوا۔ اس لیے کہ جب اس نے دور سے اس کو آتے دیکھا تو وہ دوڑ کر گیا، اس کو جا کر گلے لگا لیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آئے گا تو ٹھیک ہے جی بیٹھ جاؤ سائڈ سے، کوئی نہیں، خیر ہے تیری انہیں کلاس ہوگی، پہلے لترال سے کر لی تیری تھوڑا یا سیٹ کر پوچھیے گیا کتنے سے، نہیں۔ خداوند نے لکھا کہ اس نے اس کو چوما، گندے مندے کو چوما، اس کو گلے لگا لیا، اس کو گھر لے آیا، اس کو دھویا، اس کو صاف کیا، اس کو کہا کہ اسے اچھے سے اچھا جامہ پہنا دو، اس کے پاؤں میں جوتی پہنا دو، اس سے انگوٹھی پہنا دو، اس سے نیا بنا دو، کیونکہ یہ مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے، یہ کھو گیا تھا مجھے مل گیا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ایک شخص کھویا واپس آتا ہے تو آسمان پر خداوند بہت بڑا فنکشن کرواتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ارینجمنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، ساؤنڈ سسٹم لگتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، گٹاریں نکالتے ہیں، اپنے ہارمونیم نکالتے ہیں، گیت گائے جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں آپ کو آپ کے انداز میں بتانا چاہ رہا ہوں، آسمان پر لاکھوں فرشتوں کے ساتھ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جشن منایا جاتا ہے۔ ایک بھیڑ کی یہ ویلیو، آپ میں سے ہر ایک کی یہ ویلیو ہے۔ جب آپ میں سے کسی نے بھی توبہ کی تھی، بپتسمہ لیا تھا، آسمان پر آپ کے لیے ایسا ہوا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اور کل 5 لوگ اور جو ہیں وہ کل 5 فنکشن ہوں گے سماج کے، 5 گنا زیادہ بڑے فنکشن ہوں گے، کل بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو آپ یہ دیکھیں کہ لازر اور امیر آدمی کی جب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو یاد ہے کہ امیر آدمی نے کیا کہا تھا کہ میرے 5 بھائی پیچھے ہیں، اگر تو لازر کو بھیج دے کہ وہ میرے ان بھائیوں کو جا کر گاسپل پریچ کر دیں، ٹھیک ہے نا، ان کو بتا دیں ریئلٹی کیا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے جو بہن بھائی عزیز سو چکے ہیں، خداوند میں ہیں، جب ان تک یہ خبر پہنچے گی کہ امور نے جو ہے وہ بپتسمہ لے لیا، جب ان تک خبر پہنچے گی کہ بہن گوشی نے بپتسمہ لے لیا، عمران بھائی نے بپتسمہ لے لیا، کرسٹینا نے
बपतिस्मा लिया, तो उनके जो अजीज, हमारे अजीज जो दूसरी भाषा में इस वक्त भाषा में मौजूद है, वहां पर कितना ज्यादा जश्न होगा। सारे एक दूसरे को बताते फिरेंगे कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, या ये मेरा ग्रैंडसन है, या मेरे रिश्ते में है, इसको मैं जानता हूँ। तो वहां पर भी सब कुछ रियल है। पीपल नो ईच अदर, पीपल रिमेंबर ईच अदर, पीपल रिमेंबर व्हाटएवर दे हैड ऑन अर्थ, अपने रिश्तेदारों को याद रखते हैं। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आई विश कि मैं अपने बाप के सामने मैं एक भी बपतिस्मा दे सकता, एक भी रूह को बचा सके, कि जब वो जिंदा थे तब मैं गुनाह की हालत में था, और लेकिन जब वो खुदावंद के पास चले गए तो अब आसमान पर अनाउंसमेंट होती होगी कि फलां शख्स की या फलां के कलाम सुनाने से ये हुआ काम, तो उनको खबर तो पहुंचती होगी। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, और हम बादशाही में जब जाएंगे तो फिर हम इनको मिलेंगे। हालेलुया, ही विल बी देयर एंड ही विल शेक माय हैंड एंड आई विल शेक हिज हैंड, क्योंकि हम कहेंगे कि अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, जैसे पौलुस ने कहा था कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। कोशिश यही है कि हम जहां पर हमारे अजीज ईमानदार खुदावंद के पास ईमान की हालत में गए, हम भी वहां पर उसी हालत में पहुंचे, क्योंकि वो हमसे पहले जा चुके हैं। और लिखा है कि वो हमसे पहले जिंदा हो जाएंगे, हम जो खड़े हैं बदल जाएंगे और जलाली बदन को हासिल करेंगे। जकरिया की किताब उसके 6 बाब में हम देख रहे थे, उसकी 9वीं आयत से। ज़करिया चैप्टर 6 वर्स 9, दिस इज आवर स्टडी व्हाट वी आर डूइंग। देखा कि फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, ज़करिया चैप्टर 6 वर्स 9, कि तू आज ही खुल्दी और तूबिया और यदिया के पास जा, जो बाबल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन ज़फ़नाया के घर में उतरे हैं। उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना और यशवा बिन यहूसदक सरदार काहिन को पहना। उससे कह कि रब्बुल फ़ायू फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और खुदावंद की हैकल को वो तामीर करेगा। हालेलुया। कौन तामीर करेगा? शाख, जिसका नाम है शाख, वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, वही साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और वो उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह और सलामती की मशवरत होगी। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं जिंदा कलाम के लिए, इस जिंदा किताब के लिए जो खुदावंद के नाम से लिखी गई है। बाइबल में 5 दफा जो वर्ड शाख है वो आया है, ठीक है, खुदावंद के लिए, द ब्रांच। जेरेमाया में 2 दफा आया है, ज़करिया में है और आइज़ाया में आया है, और ये 5वां दफा जो है वो डिफरेंट वे में जीसस क्राइस्ट को एक्सप्लेन किया गया, क्योंकि 5 अंजीलें हैं। कितनी अंजीलें हैं? 5 अंजीलें हैं। कौन कौन सी? 4, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, और 5वीं नहीं, रसूलों के माल नहीं, 5वीं अंजील जो है वो है मुकाशवा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन। दिस इज अनदर गॉस्पेल, ठीक है ना। 5वीं जो गॉस्पेल है वो रेवलेशन की है, ठीक है, क्योंकि जब हम मत्ती की अंजील में देखते हैं तो हमें खुदा जो है वो यहूदा के घराने में से आता हुआ नजर आता है, हमें बादशाह के तौर पर यीशु मसीह नजर आते हैं, ठीक है। जब हम मरकस की अंजील में देखते हैं हमें वो खादम के तौर पर नजर आते हैं। यीशु मसीह की 5 डिफरेंट साइड्स हैं, क्योंकि वो शाख है, वो ब्रांच है। जब हम लूका की इंजील में देखते हैं तो वो एक नबी के तौर पर हमें नजर आता है। जब हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं तो वो एक खुदा के तौर पर हमें नजर आता है, लिखा है ना कि इब्तिदा में खुदा था। और फिर जब हम मुकाशफा में देखते हैं तो वो एक जज के तौर पर हमें नजर आता है कि वो दुनिया की अदालत करने के लिए आएगा, ठीक है। हर राइटर ने, लोग कहते हैं ना, मुसलमान हमसे कहते हैं जी 4 इंजीलें क्यों हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जो मिनिस्ट्री है उसके डिफरेंट एंगल्स हैं, डिफरेंट तरीके से यीशु मसीह को बयान किया गया है, डिफरेंट तरीके से। ये नहीं है कि 4 यीशु है, या वो यही हमसे कहते हैं जी 1 इंजील होनी चाहिए। बेवकूफी की बात वो ये करते हैं कि दे थिंक कि किताब जो है वो ऊपर से उतरती है, और यीशु मसीह के ऊपर इंजील उतरी थी तो 4 इंजीलें क्यों? हालांकि उनको ये नहीं रियलाइज कि यीशु मसीह की जात के बहुत सारे पहलू हैं, और ये शाख जो है वो क्या करेगा? आकर हैकल को तामीर करेगा। लेकिन उससे पहले क्या है कि यशवा बिन यहूसदक सरदार काहिन को क्या बनाया गया है? ताज बनाया गया है। मुकाशवा की बुक ऑफ रेवलेशन में क्या लिखा है कि अगर जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, ठीक है। फिर हमें और फिर लिखा है कि उन सब को जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी, जिन्होंने मसीह की गवाही से पीछे ना हटे थे, उनको तख्त पर बिठाया, उनको ताज दिए गए, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यशवा बिन यहूसदक जो काहिन है वो यीशु मसीह की भी तस्वीर है। इससे पहले कि
ہیکل کی تعمیر کی جائے. جب یسوع مسیح واپس آئیں گے تو کیا ہوگا کہ یسوع مسیح کی تاج پوشی کی جائے گی on the day of the feast. ٹھیک ہے, اس عید والے دن جو ہے یسوع مسیح کی تاج پوشی کی جائے گی, قوموں کی عدالت کی جائے گی. یوم کفارہ والے دن کی یہ بات ہے, جب یسوع مسیح واپس آئیں گے تو تاج پوشی کی جائے گی. اور جب تاج پوشی کی جاتی تھی, جب داؤد بادشاہ کی تاج پوشی ہوئی تو ایک زبور پڑھا گیا, اور وہ زبور جو ہے وہ ہر بادشاہ کی تاج پوشی کے وقت پڑھا جاتا تھا. اور آئی بلیو کہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو وہ زبور دوبارہ پڑھا جائے گا. کون سا زبور ہے, کوئی اگر بریلینٹ گیس مجھے دے. سام 47, میرے ساتھ پڑھیں, جس کو سام آف کورونیشن بھی کہتے ہیں. جب یسوع مسیح آئیں گے تو یہ زبور بلند آواز سے اناؤنس کیا جائے گا, پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, قوموں کے درمیان جو ہے وہ ساری دنیا کو کھڑا کیا جائے گا, اور تخت پر خداوند یسوع مسیح بیٹھیں گے اپنے جلال کے تخت پر, اور یہ زبور پڑھا جائے گا. لکھا ہے کہ ہم مل کر اس کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر بھی ہم مل کر پڑھیں گے. سام 47 ہے, اس کی پہلی آیت. ٹھیک ہے, جب یہ تاج بنایا جائے گا اس کے بعد پھر ہمیں تاج دیے جائیں گے. لکھا ہے کہ آئے سب امتوں تالیاں بجاؤ, خدا کے لیے خوشی کی آواز سے لگا, کیونکہ خداوند تعالیٰ محیط ہے, وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے. وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی. وہ ہمارے لیے ہماری میراث کو چنے گا جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے. خداوند نے بلند آواز کے ساتھ, خداوند نے نرسنگے کی آواز کے ساتھ صعود فرمایا, مدح سرائی کرو, خداوند کی مدح سرائی کرو, مدح سرائی کرو, ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو, کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے. عقل سے مدح سرائی کرو, خداوند قوموں پر سلطنت کرتا ہے, خداوند اپنے مقدس تخت پر بیٹھے ہیں. امتوں کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ابراہیم کے خدا کی امت بن جائیں, کیونکہ زمین کی سپریں خدا کی ہیں, وہ نہایت بلند ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. This is the declaration of the kingdom of God. ہاللیلویہ. یہ جو زبور ہے یہ اس وقت کیا جائے گا, پڑھا جائے گا, اور قوموں کے سامنے بتایا جائے گا کہ خداوند خدا ساری دنیا کا بادشاہ ہے. He will be declared the king. اور یہ کہاں پر بیٹھ کر ہوگا, میرے ساتھ دیکھیں آئزایہ چیپٹر 2. یسایہ کی کتاب, اس کا چیپٹر 2 اور اس کی ورس 2. دیکھیں کہ آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا اور ٹیلوں سے بلند ہوگا, اور سب قومیں وہاں پہنچیں گی. قومیں کیا کریں گی وہاں پر؟ ہم نے زبور میں کیا پڑھا تھا کہ امتوں کے سردار, قومیں اکٹھی ہوئی ہیں تاکہ سب خداوند کی امت بن جائیں. لیکن کہ بہت سی امتیں آئیں گی, کہیں گی کہ آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں, یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں. وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا. راہیں کیوں بتائے گا؟ کیونکہ راہ پر زندگی ایک ہی ہے. سچی راہ کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس. اور ہم تو اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا. وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا. ایک اور حوالہ دیکھیں, میتھیو چیپٹر 25. جب یسوع مسیح آئیں گے اور تخت لگے گا اور قوموں کو خداوند کے سامنے کھڑا کیا جائے گا, تو کیا کیا جائے گا اس وقت؟ خداوند یسوع مسیح کیا کریں گے جب یہ تاج پہنایا جائے گا؟ اس سے پہلے کہ ہمیں تاج پہنائے جائیں, ایک اور کام ہوگا. میتھیو چیپٹر 25 ورس 31, متی 25واں باب اس کی 31 میں آیا. دیکھیں کہ جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے. کون آئے گا؟ سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے. وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے. بھیڑوں کو اپنے دائیں طرف اور بکریوں کو اپنی بائیں طرف کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ کیوں؟ کیونکہ وہ تاج اس کو پہنایا جا چکا ہے. ہاللیلویہ. اس وقت بادشاہ اپنی دائیں طرف والے سے کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگ, جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اس میراث میں لو, کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا, میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا, ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا, بیمار تھا تم نے میری خبر لی, قید میں تھا تم میرے پاس آئے.
तब रास्तबाज जवाब में से कहेंगे कि आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या कैद में देकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में कहेगा कि मैं इनसे कहता हूं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि चूंकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ एक सलूक किया, इसीलिए मेरे ही साथ किया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सारा सीन है, ये जो हैकल के बनने से पहले जो सीन है, यीशु मसीह को जब तख्त पर बैठेंगे, बादशाही का ताज उनके सर पर पहनाया जाएगा, तो वो कौमों को जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि हमने कितनी चैरिटी की, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कि हाउ वी हैव डेल्ट विद इजराइल। ठीक है, ये जो छोटों की बात हो रही है ना कि मेरे छोटों के साथ किया, दिस इज टू डू विद द हाउस ऑफ इजराइल। जो लोग इस्राएल को गालियां देते हैं, लानत करते हैं, उसके लिए बुरा चाहते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उन पर हमले करते हैं, जो इर्द गिर्द की कंट्रीज में हैं, उन कौमों को खुदावन क्या करेगा, आई मल्लाउन, लानत के नीचे आने वाले लोगों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि ब्लेसिंग का वादा किसके साथ है, अब्राहम के साथ, कि जो उसके बच्चों को ब्लेस करेगा उसको मैं ब्लेस करूंगा, जो उस पर उसके बच्चों पर लानत करेगा मैं उसको लानत में डाल दूंगा। सो खुदावन उस वक्त ये फैसला करेगा, हमें जो है वो आखिरी जमाना में ये डिसाइड अप करना है कि हम खुदा की कौम के साथ कैसे खड़े होंगे। We will have to stand with the people of the Lord. We will have to stand with the Lord and His people. और हमारी फिर अदालत जो है उस हवाले से वहां पर होगी। वापस हम ज़करिया में जाते हैं। लिखा है कि वो बंदा, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया क्या होगी, खुशहाली होगी। खुशहाली कैसी होगी, मेरे साथ देखिए रेवलेशन चैप्टर 21 उसकी वर्स 3। मुकाशवा 21वां बाब और 3 है। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से कहते सुना कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, वो उनके साथ क्या करेगा, सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। हालेलुया। यानी कि ये जैसे मैंने अभी कहा कि अब तो हम ईमान से कहते हैं कि यीशु हमारे दरमियान है, लेकिन खुदावंद खुद हमारे दरमियान में रहेगा और सुकूनत करेगा। सुकूनत से मुराद है कि वहां पर वो ठहर जाएगा, वो हमारे दरमियान में आ जाएगा, और हम उसके लोग होंगे और वो हमारा खुदा होगा। हालेलुया। और लिखा है कि वो उनकी आंखों के सब आंसू पहुंच देगा। अभी जो है खुशहाली क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों में आंसू है, अभी हम दुख तकलीफ उठाते हैं। लिखा है कि इसके बाद ना मौत रहेगी ना मातम रहेगा, ना कोई मरेगा ना उसका मातम किया जाएगा। ठीक है, ना आहो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती नहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा कि देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। जब वो लानतियों को निकाल देगा और जो उसके बरकत वाले लोग हैं उनको कहेगा कि देख मैं सब कुछ नया बना देता हूं, और सब बातें जो सच हैं और बरहक हैं। उसने मुझे कहा कि ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं प्यासे को आब हयात के चश्मा में से मुफ्त पिलाऊंगा। हालेलुया। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। हालेलुया। और वहां पर खुदा यीशु मसीह फिर क्या करेंगे कि ही विल अनाउंस द रीबिल्डिंग ऑफ टेंपल, जिसको थर्ड टेंपल कहते हैं। सो क्या होगा कि खुदा यीशु मसीह कहेंगे कि अब हैकल को बनाया जाए। ये इसका रीजन क्या है, याद है कि जब खुदा ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया था तो खुदा ने उसको क्या दिया था, पहाड़ पर तख्तियां दी थी, और तख्तियां देकर शरीयत देकर क्या कहा था कि मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा, और उसका साइन क्या था, दे विल हैव टू बिल्ड अ टैबरनेकल। ठीक है, खैमा खुदा का लगाना था। तो खुदा का खैमा जब लगता है उसका रीजन क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है, उसका किस चीज का निशान है कि गॉड वांट्स टू ड्वेल अमंगस्ट अस। हालेलुया। खुदावंद हमारे दरमियान में रहना चाहता है, और यही होगा कि आखिरी जमाना में जब 1000 साल बादशाही का आगाज हो जाएगा, 1000 ईयर किंगडम का आगाज होगा, तो खुदावंद यीशु मसीह अनाउंस करेंगे कि हैकल को तामीर किया है, लेट्स रीबिल्ड द टेंपल। ठीक है, जो कि हमारे लिए बनाई जाएगी। और आपको मैंने पहले भी बता चुका हूं कि पहले कितनी दफा हैकल बन चुकी है, 2 दफा। किस किस ने बनाई थी, सुलेमान बादशाह ने बनाई थी, और दूसरी दफा ज़रुब्बाबेल ने बनाई थी, जिसको हेरोदेस ने एक्सपैंड किया। 46 साल लगे थे उसको, ठीक है, एक्सपैंड करने में। लेकिन ज़रुब्बाबेल जो था बादशाहों की नस्ल में से था, उसने सेकंड टेंपल बनाया था। ठीक है, थर्ड टेंपल कब बनेगा, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। और लिखा है कि वो हैकल को बनाएगा, साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, सुलह सलामती होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, 15वीं आयत पढ़ें।
15वीं आयत में क्या लिखा है? ज़करिया चैप्टर 6 वर्स 15, और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। किन की बात हो रही है? वो जो दूर हैं। कौन दूर है? गैर कौमों के लोग, नॉन इजराइलाइट्स, नॉन ज्यूइश पीपल, वो जो दूर हैं, जो लूटन के हैं, ठीक है, वो जो दूर के हैं, जो इंडिया के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, जो जापान के हैं, जो कोरिया के हैं, हालेलुया, जो मैनचेस्टर के हैं, वो भी आएंगे और क्या करेंगे? खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। 80 ईंटें लेके जाएंगे, हालेलुया, सोने और चांदी से हम खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। हम खुदावंद के नाम के जलाल के, हम गीत गाते हुए जाएंगे, हालेलुया, जैसा कि ज़बूर 121 में लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, ज़ियारत का गीत होगा, हालेलुया। हम भी हदिये लेके जाएंगे, हम भी चीजें लेके जाएंगे, एंड वी विल रीबिल्ड द टेंपल, हालेलुया। खुदावंद हमें भी इस्तेमाल करेगा टू रीबिल्ड द टेंपल, हालेलुया। हमें खजाना जमा करने के लिए क्यों कहा गया? खुदावंद ने क्यों कहा था कि अपने लिए खजाना जमा करो आसमान पर? क्योंकि उसी खजाने से हम खुदा की हैकल बनाएंगे, हालेलुया, उसी चीजों से, क्योंकि हमारे लिए वो खजाना जमा हो रहा है, और ताकि हम खुदावंद की हैकल वहां पर बना सकें। और बाइबल में लिखा है कि जब खुदावंद की हैकल बनाएगी, जब अहद वो खैमा बनाया गया, तो सब बनी इस्राएल ने अपना सारा जेवर, अपना सारा कुछ जो था वो दे दिया था। They gave everything, so then the temple, then the tabernacle could be made, hallelujah, artifacts could be made, और उस चीज में हर बंदे की एंट्री थी, हर शख्स की एंट्री थी। मेरे साथ देखें, बाइबल ये कहती है कि हैकल जो है वो बनाई जानी जरूरी है। ये खुदावंद की मर्जी है मेरे ज़िदों के हैकल बने, और बाइबल में ये भी लिखा है कि जब तक खुदावंद घर को ना बनाए, बनाने वाले की मेहनत अज़ है। खुदावंद की मर्जी ये है कि हमारी हैकल बन जाए, लेकिन इससे पहले कि वो थर्ड टेंपल बने, देयर इज अ नीड ऑफ बिल्डिंग ऑफ अनदर टेंपल, ठीक है। बाइबल में क्या लिखा है कि तुम जिंदा खुदा का मक़दिस हो, यू आर द टेंपल ऑफ द लिविंग गॉड, हालेलुया, एंड द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन यू, और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इससे पहले कि हम वो हैकल बनाए, हमारी प्रैक्टिस खुदावंद करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? कि हमें इस हैकल को बनाना है, हालेलुया। खैमा का ये घर जो है ये भी तो बने ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम, हिज्जी की किताब में मेरे साथ देखें, एक ही बुक पीछे चले जाएं, कि अगर हम हैकल को नहीं बनाते, we will see the consequences, we will see the consequences in our lives, हालेलुया। जहां पे लिखा है हिज्जी की किताब, पहला बुक ऑफ हेगाय चैप्टर 1 और उसकी वर्स 2, लिखा है कि रब्बुल अफ़वाह फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। रोटी ऐसी राजी के खाने हैं, 10 टाइम खाने हैं, फ्रूट भी खाने हैं, फिर स्वीट डिश भी ले लेने हैं, ठीक है, 3-3 4-4 दफा खुश करते हैं, कोक भी पूरी मुका देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि जी तौबा कर लिया, आओ खुदा दा कर चलिए, कहते जी नहीं, वक्त नहीं आया, आई डोंट फील दिस इज द टाइम, ठीक है। तो उसमें क्या है कि खुदावंद फिर नाराज होता है। खुदावंद कहता है कि क्या तुम्हारे लिए अच्छे मुस्किफ घरों में रहने का ये वक्त है, जबकि ये घर वीरान पड़ा हुआ है, हालेलुया, ये घर वीरान है। और जब घर वीरान पड़ा होता है तो बाइबल में क्या लिखा था कि वो चली गई थी, वापस आई, और जब उधर कोई तामीर नहीं हुई थी, वो उसके लिए आरास्ता था, यानी उसके लिए तैयार रखा हुआ था। और क्या था कि अपने साथ कितने और ले आई? 7 और ले आई, हालेलुया। बाइबल सच्ची किताब, हम खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम हैकल नहीं बनाएंगे, if we will not build the temple in our own life, if we will not build the temple of our own person, then we will not be filled with the Holy Spirit, ठीक है। बाइबल में लिखा है कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसता है। इसका मतलब है कि अगर मक़दिस नहीं हो तो फिर कौन बसता है? बदरूह बसती है, फिर खुदा का रूह नहीं बसता। और लिखा है कि चूंकि तुम ये कहते हो ये घर वीरान पड़ा है, चूंकि तुम कहते हो कि अभी तामीर का वक्त नहीं आया, अपनी रविश पर गौर करो, क्योंकि कौन सी लानत तुम पे आ गई, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा। हमें कई दफा जब हम इस हैकल को नहीं बनाएंगे, बिकॉज द बिल्डिंग ऑफ टेंपल ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड, हालेलुया, ये खुदा की मर्जी है कि इस हैकल को तामीर किया जाए। जिस तरह हम बच्चे थे और बड़े हो गए आहिस्ते आहिस्ते तरक्की करते करते, इसी तरह ये हैकल भी ईंट बर ईंट और कहने के दीवार दर दीवार और छत बना के हमें ये हैकल को भी तामीर करना है। वरना क्या होगा अगर हम वीरान रखेंगे अपनी रूहानी हैकल को? तो लिखा है कि बहुत सा बोया पर थोड़ा आटा, खाते हो पर आसूदा, शायद इसलिए खाना
ठीक है, आसूदा नहीं, पीते हो पर प्यास नहीं होती, कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਯਿਸੂ कह रहा मैं नंगा था तुमने मुझे दिया, साढ़े अपने नहीं पूरे हो रहे, ठीक है, दूसरों को कैसे देंगे? लेकिन ना कि मैं नंगा था तुमने मुझे दिया, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया। लेकिन वो किसकी बात हो रही है? जिसकी हैकल बन चुकी है, जो पीता है और उसको प्लेंटी है, जो खाता है उसके पास बच जाता है, हालेलुया, जो पहनता है उसके पास और बहुत कुछ है। लिखा ना कि तेरे पास दो हो तो एक दे। तो लेकिन यहाँ पर लानत कैसी आई अगर हम खुदा का घर नहीं बनाएंगे कि पहनते ऊपर गर्म नहीं होते। मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो तो मैं इससे खुश हूंगा। यीशु मसीह से खुदावंद क्यों खुश था? क्यों कहता था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं? क्योंकि वो खुदा की हैकल को बनाने के लिए है, हालेलुया। इसी तरह जब हम बनाएंगे तो लिखे ना कि जब खुदावंद का खेमा हमारे दरमियान में लग जाएगा तब मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। और लिखा है कि मैं, खुदावंद कहेगा कि मैं उससे खुश रहूंगा और वो उससे मेरी तमजीद होगी, खुदावंद फरमाता है, हालेलुया। जब हैकल बनती है तो क्या होता है? खुदावंद की तमजीद होती है। जब सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई थी क्या हुआ था कि वहां पर खुदावंद की तमजीद हुई। और लिखा है कि जब साज और आवाज मिल गए तो ऐसा अबर छा गया कि लोगों के लिए खड़ा ना हो सके, काहिन अंदर जा नहीं सकते थे क्योंकि खुदा की हजूरी ऐसी थी। और मेरे दिल जब साज और आवाज हमारी जिंदगी में मिल जाए तो फिर भी ऐसा होता है। और मेरे साथ चैप्टर 2 में देखें, हेगाई में, उसके चैप्टर 2 की वर्स 5 में, बल्कि 4 से, लेकिन ऐ ज़रुब्बाबेल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, ऐ सरदार काहिन यहोशुआ बिन योसदक हौसला रख, और ऐ मुल्क के सब लोगों हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है, और काम करो। क्या करो? काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, रब्बुल फाज फरमाता है। मिस्र से निकलते वक्त मैंने जो तुमसे अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है, हिम्मत ना हारो। क्योंकि रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में एक बार फिर जमीन और आसमान को, बहरो बर को हिला दूंगा, हालेलुया। खुदावंद हमारे लिए ये करने वाला है। मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीजें आएंगी और मैं उस घर को जलाल से मामूर कर दूंगा। अपने जलाल से इस घर को खुदावंद मामूर कर देगा। खुदावंद फरमाता है कि चांदी मेरी है, सोना मेरा है, रब्बुल फाज फरमाता है। इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी, क्योंकि जो थर्ड टेंपल खुदावंद बनाएगा that will be bigger and better and more beautiful and वो ज्यादा होगी जो कि सुलेमान बादशाह ने बनाई थी, हालेलुया। ये पिछला घर कौन सा है? जो कि थर्ड टेंपल खुदावंद बनाएंगे। और जितना बड़ा सुलेमान बादशाह ने घर बनाया था सोने से वो सारा बना था। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब यीशु मसीह आएंगे और जो तब वो टेंपल बनेगा, that will be the extreme in terms of beauty। तो अगर हम खुदावंद को अलाउ करें, क्योंकि अगर हम घर बनाना चाहते हैं, ये हैकल बनाना चाहते हैं, तो किसको हमने अलाउ करना है? खुदावंद को, रूह को अलाउ करना है। एंड दिस इज व्हाट विल हैपन एंड दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन वेरी फ्यू इयर्स। बहुत थोड़े साल रह गए, हम अपनी आंखों से ये तख्त पर बैठकर ये अनाउंसमेंट करते हुए यीशु मसीह को देखेंगे, जब वो कहेंगे कि आओ हम खुदावंद के घर को बनाएं, आओ हम उस हैकल को तामीर करें। और खुदावंद के बारे में लिखे कि तब तुम जानोगे कि रब्बुल फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी हो जाएंगी, हालेलुया। फरमाबरदारी करनी है, हमें खुदावंद के साथ चलना है। मेरे अजीजों, खुदावंद ने हमारे लिए घर बना दिया है, हमारे लिए वो हैकल तामीर कर रहा है। हम खुदा का शुक्र करते हैं, अपनी जिंदगियां खुदावंद को दें, इस घर को जो कि हमारा घर हैकल है इसको पाक करते हैं। वरना क्या होगा, जैसे डाकू बसे हुए, जैसे लगे हों ठेले लगे हों, बीच स्टॉल्स लगे हों, बीच में पकौड़े बिक रहे हों, पता नहीं क्या क्या चल रहा हो, ठीक है, हैकल में जुआ चल रहा हो। हमारी हैकल में ये भी तो हो सकता है ना कि बाइबल में क्या लिखा है कि यीशु मसीह जब उस हैकल में गए थे तो आगे से क्या था? अगुवादा आ रही, कबूतर बेच रहे थे, ठीक है, चीजें बिक रही थी, नान पकौड़े बिक रहे थे, ठीक है, ये चीजें उधर जो है इस तरह का काम हो रहा था, कारोबार हो रहा था। वो हैकल नहीं थी, मेला लगा हुआ था उधर, ठीक है। लेकिन यीशु ने फिर क्या किया था? उस हैकल को क्या किया? यीशु ने फड़ा फिर तोड़ा, यीशु ने फिर लाइयां ना उसे दिया, पखियां जमारियां ना दिया, मुंह से मारियां, सीधे हो गए सारे, ठीक हो गए, भाग गए सारे। और हमारी जिंदगी में कोशिश करें कौन सी हैकल है? वो वाली हैकल जो यीशु तामीर करना चाह रहा है, या वो वाली हैकल जिसमें डाकू और चोर बसे हुए हैं? और चोर और डाकू किसको कहा गया है? शैतान को। क्या कहा गया? चोर चोरी करने आता है, मार डालने, डाका डालने।
تو دو طرح کی ہیکلیں ہیں، ایک وہ ہیکل جس میں کاروبار ہوتا ہے، جس میں بدروہیں بسی ہوئی ہیں، اور دوسری ہیکل وہ ہے جس کو خداوند نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور وہ اس میں بسے گا۔ سو یہ فیصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے کہ وچ ٹائپ آف ٹیمپل وی ہے، وچ ٹائپ آف اسپرٹ وی کیری، ٹھیک ہے، کون سی روح ہم، روح القدس یا بد روح کیری کرتے ہیں، اور پھر آخری زمانہ میں جب یہ ہیکل بنے گی we will be part of that great building of the temple. Hallelujah. خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا کا شکر۔